Good morning, my friends. I am Saurabh Pandey and welcome back to my channel. Today we will discuss resonance, and I guarantee you that you will understand this topic like never before. Okay, so let's start resonance. What is resonance? Should I explain? So, resonance is a phenomena in which an external force or a system which vibrates makes the other system, the surrounding system, to vibrate at much higher amplitude. So that is resonance. एक कोई body होगा, ये system है, and then there is another system, like I am a system. Fine. So I have started to push this pendulum, this pendulum. So it will start to oscillate. It will oscillate. Then again I push, again it will oscillate. So it will be oscillating like this. So what happens is that if the time period of oscillation of this pendulum and the time period of me pushing that pendulum starts to match, then this pendulum will be moving the maximum to the maximum height. Okay, so that this system now is in resonance because it is moving the maximum amplitude. Okay, so this is one example of resonance. So there are many practical applications of resonance. I am not going to do any mathematical proofs today in this video. I would be explaining the basic examples that we see, that we observe in our day-to-day life. Fine. So one example is a swing or a pendulum. Okay, so these are two examples of resonance. The other example is of radio or TV. How does resonance play an important role in radio or television? So what happens in radio or television is that we have a receiver, and receiver is consisting of an oscillator. It will have certain frequency, fine, which can be tuned, which can be changed. So what happens is that there is a radio station like Radio Mirchi 98.3 FM, fine, or anything else. So what happens is that it is broadcasting its programs, and now I have tuned my radio frequency, my radio receiver, to same frequency 98.3 megahertz. Here FM is frequency modulation, 98.3 is 98.3 megahertz, and the broadcasting is done by frequency modulation. Fine. So that is why 98.3 FM is named like this. Fine. So in radio receiver, we can tune. There is button, no, which we can tune. So we can tune that button, and then we can match the frequency of that button to the frequency of the radio station, and then we can easily start to listen what they are saying. Because what happens is that if the two systems are in resonance, so transfer of energy takes place, और the sound starts to amplify, और जोर से आवाज़ आना शुरू हो जाता है, और उसको फिर हम लोग सुनने लगते हैं. यहाँ पे बैठे हुए हम लोग सुनने लगेंगे क्या बोल रहा है. ठीक है, तो ऐसे रिजोनेंस काम करता है रेडियो में, एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर टेलीविजन एज वेल. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस. ये आपको 3 एग्जाम्पल्स 4 मैंने अभी बताया रिजोनेंस का. फाइन. I hope you have understood how resonance is working in our practical life.
आपको एक कहानी सुनाता हूँ उससे पहले, ठीक है। एक ये है टैकोमा ब्रिज था, TACOM, टैकोमा ब्रिज। In 1940, the exact date is November 7th, November 7th, 1940। क्या हुआ कि उस ब्रिज का जो मटेरियल से बना हुआ है ब्रिज, उसके उसके पास भी कुछ फ्रीक्वेंसी होंगे जिसके ऊपर वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उस दिन करीब करीब एयर का स्पीड था 35 माइल्स पर आवर, जो कि बहुत नॉर्मल स्पीड है ऑफ एयर। लेकिन बदकिस्मती से, बैड लक की वजह से, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे ना, कैसे निकलेगा? C=F/λ, ठीक है। तो यहां से आप इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया एयर का फ्रीक्वेंसी मैच्ड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, फ्रीक्वेंसी ऑफ टैकोमा ब्रिज, एंड रिजोनेंस हैपेंड, और उस रिजोनेंस की वजह से ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो ये बहुत ट्रेजिक घटना था टैकोमा ब्रिज का, और ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं था। एट दैट टाइम इट वॉज द थर्ड लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज था और जो सिर्फ हवा से गिर गया, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है रिजोनेंस का। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट यू स्टार्ट्स सिंगिंग वेरी स्वीटली, वेरी नाइसली व्हेन यू आर इन बाथरूम? इसमें बाथरूम सिंगर कोई है क्या? तो बाथरूम सिंगर का होता क्या है कि आप जब नॉर्मली गाना गाते हो तो गाना बहुत बदसूरत होता है, ठीक है, आप अच्छा नहीं गा पाते हो। लेकिन जब बाथरूम में आप गाते हो, ठीक है, बाथरूम में आप गाओगे और शावर ले रहे हो, ये बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ही नहाते हो ना आप लोग, तो ये दीवारें हैं, और बाथरूम का जनरली साइज होता है छोटा, ठीक है, और ये शावर है, शावर लगा हुआ है, और आप यहाँ पे गाना गा रहे हो, ठीक है, गाना गा रहे हो। तो शावर में जो पानी है, पानी का ड्रॉपलेट्स और आपका गाना एक दूसरे के साथ मिलता है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, फिर दीवारों की वजह से भी फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उसके वजह से आवाज़ बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन होता है हर एक साइड से, दे स्टार्ट्स टू रिजोनेट टुगेदर, और आवाज़ बहुत तेज हो जाता है, और आपका आवाज़ जो आप गाना गा रहे हो वो काफ़ी सुरीला लगने लगता है। इट अपीयर्स दैट यू आर सिंगिंग वेरी नाइसली, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बाथरूम, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ द बाथरूम। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस। बाथरूम सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस। ये कभी आपने सोचा था कि रिजोनेंस कहाँ कहाँ होगा? बाथरूम सिंगिंग, सिंगर्स, ठीक है, बाथरूम सिंगर्स भी रिजोनेंस का ही यूज करते हैं। और बताओ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ यूज नहीं हो सकता, ये बोलो। हर एक जगह यूज होगा रिजोनेंस का, ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह है, ठीक है। अभी आप गिटार वगैरह बजाते हो ना, गिटार ऑल्सो यूजेस प्रिंसिपल ऑफ रिजोनेंस। क्यों? मेरा फोटो तो बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है गिटार, फाइन, ऐसा ही होता है ना गिटार, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं। आप इसको वाइब्रेट करते हो, तो इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहे हो तो इट विल ऑसिलेट एंड इट विल हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अभी ऑसिलेट करेगा तो इसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, सो दैट फ्रीक्वेंसी comes in resonance with the air here,
फाइन. एंड देन दैट एयर इज इन हॉलो वुड, तो उसकी वजह से द एयर स्टार्ट्स टू रिजोनेट विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग. और हॉलो वुड जो है गिटार का, वो क्या करता है कि उस आवाज़ को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, और इस तरह से गिटार यूज़ होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक गिटार भी, इलेक्ट्रिक गिटार भी रिजोनेंस का ही यूज करता है. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस. और बताओ कहाँ रिजोनेंस नहीं है? गिटार में भी हो गया रिजोनेंस. ऑर्केस्ट्रा गए हो कभी आप लोग, या ऑर्केस्ट्रा सुने हो कभी आप लोग? हैव यू एवर हर्ड ऑर्केस्ट्रा? So this another example of resonance is orchestra. Fine. तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? हैव यू एवर सीन दैट ग्लास ऑफ वाटर अगर यहाँ पे है, ये पानी का ग्लास है, और यहाँ ऑर्केस्ट्रा का काम हो रहा है, गाना वगैरह बजाया जा रहा है. ठीक है. तो ग्लास ऑफ दैट वाटर can break because of the orchestra without any physical touch. क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल से, ग्लास जो मटेरियल से बना है, ग्लास मटेरियल also vibrates. It also has frequencies, resonance frequency. Fine. And then this resonance frequency and the frequency coming out of the orchestra, if they resonate together, तो क्या होगा? तो डिस्टरबेंस और ज़्यादा होगा. पार्टिकल्स, और ये मान लो मिन पॉइंट है, तो पार्टिकल दूर दूर जाना शुरू कर देंगे. वाइब्रेशन और ज़्यादा दूर हो जाएगा, वाइब्रेशन और ज़्यादा दूर हो जाएगा हर एक पार्टिकल का, और ग्लास टूट जाएगा. ठीक है. तो ये भी एक रिजोनेंस का ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि हाउ अ ग्लास ऑफ वाटर कैन ब्रेक विदाउट एनी टच व्हेन यू प्लेस इट इन ऑर्केस्ट्रा. या विंडो ग्लास का भी वही एग्जांपल होगा. ऑर्केस्ट्रा की वजह से ये सब नुकसान हो सकते हैं. फाइन. देन हैव यू एवर ऑब्जर्व कि जो आर्मी मैन होते हैं, आर्मी मैन, दे नेवर डू मार्च पास्ट ऑन ब्रिजेस. ये आपने कभी देखा है? वाई डोंट आर्मी मैन डू मार्च पास्ट ऑन ब्रिजेस? क्योंकि अगर वो लोग मार्च पास्ट करेंगे तो एट सेम टाइम उनका पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, और वो एक फ्रीक्वेंसी होगी. क्यों? क्योंकि आपका पैर भी ऊपर नीचे जो हो रहा है, तो वो भी तो मूवमेंट ही हो रहा है ना, वो भी तो ऑसिलेट ही कर रहा है. तो अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसके पास भी फ्रीक्वेंसी होगा. एंड इफ दैट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स टू रिजोनेट विद द ब्रिज, व्हाट विल हैपन? टैकोमा हो सकता है. ठीक है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिजोनेंस का. तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स रिजोनेंस के ही हैं. आपको मेडिकल फील्ड में भी रिजोनेंस है. एमआरआई का नाम सुना है आपने? एमआरआई या सीटी स्कैन, एमआरआई भी रिजोनेंस ही है. कैसे? एमआरआई का फुल फॉर्म पता है आपको? एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, आर स्टैंड्स फॉर रिजोनेंस, एंड आई स्टैंड्स फॉर इमेजिंग. फाइन. तो इसमें भी रिजोनेंस ही है. कैसे है? एमआरआई कैसे काम करता है? तो उसमें ये होता है कि ये बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होंगे इसमें. ठीक है.
मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे आप बना लेना, ठीक है। पूरा मैग्नेटिक फील्ड है हर एक तरफ से। ये मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को डाला जाए इस बॉक्स में, तो अपना ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ 60 to 70% ऑफ वाटर। फाइन, 60 to 70% ऑफ वाटर। और वाटर का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? H2O, दिस इज वाटर। तो इसको मैं मिटाता हूं, मिटा दूं ना। तो H2O में ये मान लो ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। फाइन, तो अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए बॉडी के ऊपर, तो इसमें से मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे दे विल अलाइन इन अ फिक्स्ड मैनर। मान लो इधर ऐसे अलाइन हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अलाइन नहीं होंगे। मान लो ये, मान लो ये, मैक्सिमम विल बी अलाइंड बट देर विल बी अ फ्यू दैट वोंट अलाइन। अभी क्या किया जाएगा कि मान लो यहां से, अभी इसको मैं मिटाता हूं दोबारा से। इसमें अब हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी लगाया, तो अभी ये वापस से जो ये हाइड्रोजन, अगर सॉरी ये तो अलाइंड है, ये अगर अलाइंड नहीं है तो ये अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी अलाइंड नहीं है तो ये भी अलाइंड हो जाएगा। फाइन, और जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को हटाएंगे, व्हेन वी विल रिमूव द रेडियो फ्रीक्वेंसी और टर्न ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, दे विल अगेन गो बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। They will again rotate to their original axis and they will release energy, and that energy will be calculated by the computers। और ये कंप्यूटर्स कैलकुलेट करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से वो सेल्स हैं जहाँ के हाइड्रोजन एटम्स सही से नहीं मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। क्योंकि और सब अगर सही काम कर रहे हैं और ये एक दो हैं जो गलत काम कर रहे हैं या सही एक्सिस पे नहीं है, तो वहाँ कोई इशू है। तो ये दोनों अगर मान लो इशू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत था, ठीक है। तो ये भी एक रिजोनेंस का ही प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि ये सब रिजोनेट होके एक्सिस पे आ गए थे अपने, लेकिन ये नहीं हो पाया और ये एनर्जी छोड़ने लगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ MRI वर्क्ड? MRI वर्क्स। तो अभी तक का जो क्लास हुआ आपको मज़ेदार आया, मज़ा आया? आई होप यू एंजॉयड द क्लास। फाइन, टुडे आई विल बी क्लोजिंग द वीडियो हियर ओनली। और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पैरेलल रिजोनेंस नहीं, पहले सीरीज रिजोनेंस पढ़ेंगे, सीरीज रिजोनेंस, और बाद में पैरेलल रिजोनेंस। देखो, रिजोनेंस में हमेशा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही होगा, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो रिजोनेंस में अगर ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, एंड इफ दिस टू आर इन रिजोनेंस, इसका एनर्जी इसमें जाएगा और फिर ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और फिर रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्व और रिलीज होते रहेगा और ये आपको कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऑलवेज ऑसिलेट। तो एनर्जी विल बी एब्जॉर्व्ड एंड विल बी रिलीज्ड। तो ये रिजोनेंस में ही होता है। फाइन, तो कल का ये टॉपिक है जो रिजोनेंस पढ़ेंगे। आज आपको मज़ा आया वीडियो देख के? ठीक है, चलो फिर बाय।